Okay, so hello everyone. Today we are going to discuss about the file handling functions. In the previous videos, we have already gone through the different low-level IO function. After that, we have already seen about the error handling function like F error, P error. Okay, after that, we have seen low-level IO functions like open, read function, write function, close function. Okay, so today we will discuss about the other functions of file handling. So C provides some file functions to test whether the pointer is at the end of file, to return to the beginning of the file, to rename a file, and to delete a file. So there are different kinds of functions are provided by C related to your file handling concepts. That four functions I have already explained when we have started the file handling. Okay. So first of all, we need to see about the fseek function. We are having four standard function: fseek function, feof function, ftell function, and rewind function. The question may ask in the university examination, explain the file handling functions or write a short note on fseek, feof, ftell, and rewind. Likewise. So first of all, we will see about the fseek function. We already know whenever we are going to perform the reading operation or writing operations onto the file. So your reading pointer or writing pointer heads will get moved in backward as well as in forward directions. If you want to move your pointer either in forward direction or either in reverse direction. For example, right now if I am going to read this text, C provides some file functions. So now I'm stop over here. Again, I want to read something, so I have to start again from to test whether the pointer likewise. Similarly, same thing happen with the writing operations also. It means that you have started writing in one particular file. So you have started the writing A, B, C, D, E, F, G, whatever, till the last point. If you want to append something, so you have to append from the last character, whatever you have written in the file. So it means that suppose if you want to move a reading or writing heads, or we can say a pointer head, ठीक है, it means that if you want to move the cursor, for example जैसे हम लोग कोई book read करते हैं, ठीक है, so if suppose you are on the book, you are on the page number 25, so 25 page number पे all of a sudden if you want to visit the page number 22, so you will go in that backward direction. You have to open the page number 22. But at the same time, if you want to see page number 30, so you will go in a forward direction. That means you will move forward. That means you have to open the page number 30 and you have to read it or write it, whatever you want to do. So same thing happen in the file. Suppose if you want to move a reading writing cursor or reading writing pointer, or we can say head itself, if you want to move in backward direction, if you want to move in forward direction, it means that suppose you have started reading from here, आप यहाँ से read करते 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 यहाँ तक आ गए, ठीक है, इस point तक आपने reading कर लिया, ठीक है. Now suppose it's your choice if you want to go further, if you want to go forward, or if you want to go backward. आपको इस left में जाना है, right पे जाना है. It means that your pointer head is here. Your pointer head is here. Now it is your decision. If you want to go ahead, you have to move ahead. If you want to go backward, you can go backward. So at that time, this cursor, you are doing the movement of this cursor. ये आपका जो cursor, you are doing the movement of this cursor either in forward or backward. So what your fseek function will do? Your fseek function is used to positioning the file pointer in a file. It means that you have to change the position of your pointer to make the pointer position at the appropriate place. That means you're going to change the pointer where you want. You want in a backward direction, you want in a you want in the previous line, or you want in the next line, or you want in the next character, likewise. Now, so fseek function is used to positioning the file pointer in a file. We need
we need to pass three arguments while calling the seek function. So if you want to use a fseek function, so there is a necessity to pass the three arguments with the fseek functions. So there are first argument is file pointer. It means that on which file you are going to work. So your file pointer always store the address, whatever file you have opened. It is always your file, you have created one file pointers, your file pointer will always store the address of a file, whatever file you have opened for the operation. So the first parameter is a file pointer, then after that integer value to reposition a file pointer either in backward direction or either in forward direction. It means that suppose if you have written fseek fptr comma 5, it means that after that you need to provide the position repositions of your particular file pointer, and after that you have to just a sec. After that you have to give a current positions of your file pointer. It means that there are three parameters is there are three parameters you need to pass over here. The first one is file pointer, second one is your positions or repositions of your particular pointer, and after that the current positions of your file pointer. It means that suppose your file pointer currently at the beginning position on the 0th position. If you want to move your cursor from 0 से लेके मुझे 10 तक जाना है, 10 पोजीशन तक जाना है, so displacement कितना हुआ 0 to 10. That means आप यहाँ पे हो, that means आप suppose यहाँ पे हो, इस particular pointer पे हो, आप यहाँ पे, आपका head यहाँ पे, आप 0th लोकेशन पे, यहाँ से आपको रीडिंग करना है, लेकिन आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है. इफ यू वांट टू डायरेक्टली आपको ये 15 नंबर का कैरेक्टर यहाँ से रीड करना स्टार्ट करना है. आपका पॉइंटर यहाँ पे, आपका पॉइंटर इस पर्टिकुलर पॉइंटर पे, बट यू वांट टू स्टार्ट द रीडिंग फ्रॉम हियर. फंक्शन से स्टार्ट करना है, यहाँ से रीडिंग करना है. सो ये जो इतना गैप है, ये इतने गैप जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल 10 कैरेक्टर्स है, 15 कैरेक्टर्स है, दैट मींस 0 टू कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर छोड़ के आपको रीड करना है. So suppose if you have written fseek in bracket fptr comma 10 comma 0, that means आपका currently pointer 0th position पे, वहां से आपको उठ के कहाँ पे जाना है, 10th नंबर पे जाना है. 10th नंबर पे जो भी कैरेक्टर होगा वहां से आपको रीडिंग स्टार्ट करना है, 10th नंबर लोकेशन से आपको रीडिंग स्टार्ट करना है. ठीक है. एंड आप कौन से फाइल में काम कर रहे हो, ऑलरेडी फाइल का एड्रेस उस पर्टिकुलर फाइल पोर्टर में लिखा गया है. सो दैट मींस fseek इज द फंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू मेक. So your fseek function basically used to change the positions of your pointer either in forward or either in backward direction. Okay, so we'll see one example. Here is the example of fseek function. So we have taken one array of characters ch100. After that we have created the file pointer fptr. So I have opened one file info.txt in w plus mode. W plus mode means we are going to open the file, open this particular info.txt file in W plus mode, that means reading as well as writing purpose. Plus stands for reading as well as writing, and W, suppose यहाँ पे सिर्फ अगर W लिखा होता, that means it is only a writing mode. After that, what you did, fput function is used to put this text into your, put this particular statement into your f pointer. That means this is the fseek. So f pointer जो फाइल एफ पॉइंटर जो आपका पॉइंटर आपने फाइल का बनाया हुआ है वो किससे कनेक्टेड हुआ है, info.text से कनेक्टेड हुआ है. दैट मींस योर fptr विल होल्ड द एड्रेस ऑफ info.text. दैट मींस आपने एक फाइल ओपन किया है, यू हैव ओपन द फाइल नेम्ड एज info.text and the address of that file is stored into the fptr. Now next fputs, that means what you are going to do, you are going to store, this is the fseek, that statement you are going to write in fptr file. So fptr में आपने स्टेटमेंट राइट किया, दिस इज अ fseek. आफ्टर दैट व्हाट यू हैव रिटन, fseek फंक्शन fseek fptr 5 0. नाउ आपने क्या किया, दिस इज द fseek, इट इज रिटन इनटू योर फाइल, दिस इज द fseek. दैट मींस आपका लास्ट पॉइंटर जहां पे रहेगा वो k पे रहेगा. यहां तक रिटर्न आपका कंप्लीट हो चुका है. दिस इज द fseek, आपने इतना लिखा है फाइल में. ठीक है, दैट मींस आपका लास्ट पॉइंटर कहां पे रहेगा, k पे रहेगा. Now, so what you did, fseek fptr 5 0. That means आपने क्या किया, फाइल पॉइंटर चेंज कर दिया. ठीक है, चेंज कर दिया. कहां पे चेंज किया है आपने, आपका जो फाइल पॉइंटर, दैट मींस आप कौन से फाइल पे काम कर रहे हैं, द नेम ऑफ दैट फाइल इज info.txt फाइल. ठीक है, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू रिपोजिशन द फाइल पॉइंटर. दैट मींस आपका जो भी
हेड है, रीडिंग राइटिंग हेड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स वी हैव टू चेंज दैट फ्रॉम 0 to 5। दैट मीन्स आपका ये सपोज फाइल है, ये इस तरीके से आपका फाइल है, ठीक है। सपोज दिस इज अ फाइल, यहाँ पे आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। नाउ यू आर गोइंग टू चेंज द पोजीशन ऑफ योर फाइल रीडिंग और राइटिंग पॉइंटर, ठीक है। सो आप ये 0 पे है, ठीक है, आपको कहाँ पे चेंज करना है, आपने बोला है 5,0। दैट मीन्स यू हैव टू चेंज योर कर्सर फ्रॉम द बिगिनिंग एट द फिफ्थ लोकेशन, दैट मीन्स फिफ्थ कैरेक्टर। दैट मीन्स आप बिगिनिंग से 0th पोजीशन से आपको यहां से निकालना है पॉइंटर को, हेड को कहां ट्रांसफर करना है, फिफ्थ नंबर के कैरेक्टर पे, दैट मीन्स यहाँ पे। सपोज ये आपका 0 है, यहाँ पे, यहाँ से आपने रीडिंग स्टार्ट किया है, यहाँ से आपको ये पॉइंटर को उठाना है और कहां से कहां तक जाना है आपको, फिफ्थ, यानी 0 से लेके 5 कैरेक्टर को छोड़ना है, ठीक है। सो ये 6 नंबर के कैरेक्टर से रीडिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। नाउ सी दिस इज द F6, ये आपने लिखा था, आपने किया चेंज द कर्सर, ठीक है, 0 से लेके आपने 5 तक, 0 से उठाया आपने 5 तक पहुंचाया। आफ्टर दैट F गेट्स, F गेट्स का मतलब होता है यू आर गोइंग टू रीड द कंटेंट ऑफ योर फाइल। F पुट्स से आप फाइल में क्या करते हो, फाइल में डेटा को राइट करते हो, एंड विद द हेल्प ऑफ F गेट्स फंक्शन यू आर गोइंग टू रीड समथिंग फ्रॉम द फाइल, आप फाइल से रीड करते हो F गेट से। सो ch, 50, fptr, that means you are going to read the character from fptr, that means info.txt फाइल से आप क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो, and which is stored into the ch is nothing but your array of character। सो जो भी डेटा आपने रीड किया फाइल से वो कहाँ पे आ गया, ch में आ गया। आफ्टर दैट आई हैव प्रिंटेड वन मैसेज आफ्टर द फाइल स्टिक, दैट मींस फाइल स्टिक होने के बाद, दैट मींस आपने आपके पर्टिकुलर फाइल पॉइंटर का पोजीशन चेंज करने के बाद व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट, आपने एक मैसेज प्रिंट किया, प्रिंट अप %sch, दैट मींस ch में आपने जो भी डेटा रीड किया है विद द हेल्प ऑफ fgets, दैट मींस आपने फाइल से जो भी डेटा रीड किया है वो डेटा आपका कहाँ पे आया हुआ है, ch में आया हुआ है, एंड ch इज नथिंग बट योर अरे, यानी आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डिड, व्हाट वी हैव राइट समथिंग इनटू द फाइल, हमने फाइल में एक स्टेटमेंट लिखा, दिस इज द F6। आफ्टर दैट हमने फाइल से डेटा रीड किया थ्रू द F गेट्स, यानी हमने फाइल से डेटा रीड किया, ठीक है। रीड करने के बाद वो डेटा कहाँ पे आया है, ch में आया है, ch इज नथिंग बट योर कैरेक्टर अरे, ठीक है। नाउ बिफोर दैट व्हाट यू डिड, यू चेंज द पोजीशन ऑफ योर पॉइंटर, आपने पोजीशन क्या चेंज किया है, देखिए आपने यहाँ पे पोजीशन चेंज किया 0,5, दैट मीन्स 0 से, दैट मीन्स बिगिनिंग से आपको पॉइंटर उठाना है, कहां पे लेकर जाना है, फिफ्थ नंबर के कैरेक्टर के बाद, दैट मीन्स 5 कैरेक्टर छोड़ के 6 नंबर का जो भी कैरेक्टर होगा वहां से, दैट मीन्स सपोज मान के चलते कि यहाँ पे है, सो यू हैव टू स्टार्ट द रीडिंग फ्रॉम 6 नंबर कैरेक्टर, यहां से आप रीडिंग स्टार्ट करते हो। सो नाउ 6 नंबर के कैरेक्टर से रीडिंग करोगे, सो आपने प्रिंटर परसेंट एस सी एच बोला है, सो आपके अभी स्क्रीन पे क्या लिख के आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मैसेज आया आफ्टर फाइल से, ये लिख के आया, ठीक है, बिकॉज ये आपने प्रिंट किया, देखिए प्रिंट अप आफ्टर फाइल से, आफ्टर फाइल से के लिख के आया। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव प्रिंटेड, प्रिंट अप %sch, ch में जो भी डेटा आपने फाइल का रीड किया हुआ डेटा है वो आपका ch में आया हुआ है, और डेटा रीड कहां से कहां तक करना है, ठीक है, फिफ्थ नंबर के कैरेक्टर से 0 to 5, दैट मीन्स देखिए ए यहाँ पे आपका ये 0th नंबर है, ठीक है, ये आपका ये 0th है, ठीक है। आपने क्या बोला है, आफ्टर फाइल से किया आपका प्रिंट हुआ, आपने रीड किया, आपने आपके फाइल में स्टोर क्या किया था, ये स्टोर किया था, ये आपने फाइल में स्टोर किया था, देखिए F पुट्स दिस इज अ F6, अभी दिस इज द F6, T 0 पे है, H 1 पे है, I 2 पे है, S 3 पे, लाइकवाइज तो फिफ्थ पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5, स्पेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द कैरेक्टर, सो 5 6, यानी 6 नंबर आपका इज आई से स्टार्ट होगा, तो देखिए आई से स्टार्ट हुआ और आई से इज F6, ये पूरा प्रिंट हुआ, ठीक है। देखिए दिस इज द F6, सो दिस इज द F6 में से टी आपका 0 पे है, 0 से आप 5 कैरेक्टर छोड़ दो, 5 कैरेक्टर छोड़ देते हैं तो आपका ये रीडिंग कहां से स्टार्ट करेगा, आई से स्टार्ट करेगा, तो आपका देखो आउटपुट में लिख के आया हूं नीचे इज F6, यानी आपने राइट किया था फाइल में दिस इज द F6, फिर आपने पॉइंटर चेंज किया, पॉइंटर कहां से कहां तक लेके गया 0 to 5, सो आपका आई पे पॉइंटर आपने सेट किया, फिर आई से यहाँ पे आपने रीड किया, यहाँ पे रीड किया, दैट मीन्स आपके आंसर में जो भी आया इज F6, दैट मीन्स आपने जो प्रिंटअप के थ्रू ये ch अरे अरे ch जो है आपका उसका डेटा आपने प्रिंट किया, तो उसमें क्या आएगा आपका इज F6, ये लिख कर आएगा, सो दैट इज द आउटपुट।
So likewise, we have to use a fseek function. Now the second is FEOF function. So FEOF function, it is also one of the functions which is provided by C programming for file handling. So basically FEOF function which is work on file. FEOF, file end of file. That means suppose if you want to check whether the reading or writing operation, whenever you are going to perform reading and writing operations, so at that time basically for reading operations. Okay. So your file, if you want to check the end of the file. Likewise, in case of a string, if you want to check where your string will get end, so string will be end by /0. Okay, where /0 appears, it means that your string will get end. ठीक है, जहां पे भी आपके स्ट्रिंग में /0 मिल गया, इट मींस दैट वहां पे आपका स्ट्रिंग एंड हो चुका है. ठीक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं. ठीक है, सिमिलरली हाउ वी कैन फाइंड आउट वेयर इज your end of the file? That means your pointer reaches to your end of the file. Okay, so there is one existing functions we can use, FEOF function, which is used to check it reaches to the end of the file or not. So FEOF functions which is used to check whether your particular file pointer which reaches to the end of the file or not. So this is a simple program. We have created one file pointer fptr. After that we have opened one file info.txt in reading mode as well as writing mode, because we have written r plus reading and writing mode में हमने info.txt फाइल ओपन किया, and it is connected with a fptr. जब फाइल ओपन होगा तो उसका एड्रेस किस में जाएगा, fptr में जाएगा. After that we have written fputs. This is a FEOF functions. What you have written in a file, you have created one file info.txt, you have written in that file, this is a FEOF function. So you have written this is a FEOF in the file. The name of that file is info.txt. After that, what you have did, rewind fptr. In the next slide we will see what is rewind. So basically rewind का मतलब क्या होता है, what do you mean by rewind function? So rewind function, it will move your cursor wherever it is, it will move to the beginning positions. That means आपका फाइल काउंटर कहीं पे भी होगा, ठीक है, उसको हम लोग उठा के आपकी बिगिनिंग पोजीशन, दैट मींस जीरो कैरेक्टर पे, दैट मींस इट इज ऑन फर्स्ट कैरेक्टर पे हम लोग पुट करते हैं, दैट इज अ रिवाइंड फंक्शन. ठीक है, सो आफ्टर दैट हमने क्या किया, रिवाइंड एफपीटीआर. दैट मींस आपका जो फाइल पॉइंटर है उसमें पॉइंटर कहीं पे भी होगा, उसको उठा के आपने कहां पे रख दिया, फर्स्ट पोजीशन पे लाकर रख दिया, दैट मींस पहले कैरेक्टर पे सेट कर दिया. आफ्टर दैट वाइल वन. ठीक है, दैट मींस ये वाला फंक्शन चलेगा. ठीक है, कब तक चलेगा, जब तक एक्सप्लिसिटली ब्रेक नहीं आता है. वाइल वन, दैट मींस इट इज अ लूपिंग स्टेटमेंट. ये फंक्शन कब तक चलेगा, जब तक एक्सप्लिसिटली आपका ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता. जैसे ब्रेक स्टेटमेंट मिल गया तो वाइल के बाहर निकल जाएगा, दैट कंट्रोल गोज टू आउट ऑफ द वाइल लूप. ठीक है, सो वाइल वन वी हैव टू रीड ch f get c. दैट मींस वी आर गोइंग टू रीड समथिंग फ्रॉम द f pointer. f pointer is connected with the info.txt file. so info.txt फाइल से हमें डेटा रीड करना है. हमने डेटा रीड करने के बाद किसमें स्टोर करना है, हमें डेटा स्टोर करना है ch में. That means we are going to read the data from the fptr. That means info.txt से हम लोग डेटा रीड करेंगे. और info.txt में अभी हमने डेटा स्टोर क्या करके रखा है, हमने डेटा क्या स्टोर करके रखा है, हमने fputs के थ्रू दिस इज अ FEOF एक स्टेटमेंट लिखा है, दिस इज अ FEOF एक फाइल है जिसके अंदर आपने लिखा दिस इज अ FEOF. आफ्टर दैट आपने रिमाइंड किया, आपने पॉइंटर को बिगिनिंग पे सेट कर दिया. ठीक है, आफ्टर दैट आपने f गेट्स के थ्रू f गेट सी के थ्रू आपने वो फाइल का डेटा आपने रीड किया. डेटा रीड करके आपने स्टोर किसमें किया, ch में डेटा स्टोर कर दिया. आफ्टर दैट लिखा FEOF ऑफ fptr. सो बेसिकली FEOF पॉइंटर क्या करता है, FEOF फंक्शंस क्या करता है, it will tell whether your particular pointer reaches to the last position or not. So it will return a non-zero value. Listen very carefully. It will gives a non-zero value when it will reaches to the last position of your file. When it will reaches to the last position of your file. जैसे आपका फाइल काउंटर लास्ट पोजीशन पे चले जाता है, एंडिंग पे चले जाता है, तो इट विल रिटर्न अ नॉन जीरो वैल्यू, एल्स इट विल रिटर्न अ जीरो वैल्यू. ठीक है, आपका फाइल पॉइंटर अगर आपके लास्ट पोजीशन पे चले गया, फाइल का पूरा डेटा रीड कर दिया और लास्ट कैरेक्टर पे आपका फाइल पॉइंटर है, इट मींस दैट ऑल द डेटा इज रीडेड सक्सेसफुली. सो इट मींस दैट इट इज द एंड ऑफ द फाइल, एंड ऑफ द फाइल. सो अगर आपका फाइल पॉइंटर एंडिंग पोजीशन पे, सो इट विल रिटर्न नॉन जीरो वैल्यू, एल्स इट विल रिटर्न जीरो. अगर वो बीच में कहीं तो भी है बिगिनिंग पे, सो इट विल रिटर्न द जीरो, आपको जीरो मिलेगा. ठीक है,
So we have to check if EOF functions, अगर EOF functions का it you will get a non-zero value, अगर आपको non-zero value मिलता है it means that it will print a message end of file range, फाइल एंड हो चुकी है, ब्रेक हो जाएगा. If it is not, अगर आपका FEOF का वैल्यू नॉन जीरो नहीं है, जीरो मिल रहा है, ठीक है, नॉन जीरो नहीं है, जीरो मिल रहा है, इट मींस दैट your file pointer is not reached to the ending position, not reached to the last position. That means it will in the it is in between of the content, or it is on the beginning positions or somewhere else. ठीक है, so somewhere else, that means we are going to print %ch. अगर आपका पॉइंटर लास्ट पोजीशन पे नहीं है, अगर आपका FEOF का आपका रिटर्न वैल्यू जीरो होता है, इट मींस दैट आपका फाइल पॉइंटर इट इज नॉट रीच टू द लास्ट पोजीशन. सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट वॉट एवर यू हैव रीड थ्रू द फाइल. आपने डेटा जो रीड किया है ये गेट सी के थ्रू आपने जो भी डेटा रीड किया है, वो डेटा रीड करके आपने CH में स्टोर कर दिया. फिर आपने चेक किया कि एंडिंग पोजीशन पर पहुंचा है क्या, नहीं है, नहीं है तो फिर क्या कर दिया आपने सी की वैल्यू प्रिंट, आपने CH की वैल्यू प्रिंट कर दी. जो भी CH की वैल्यू होगी वो मॉनिटर स्क्रीन पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी. ठीक है, सो वन बाय वन कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर ये रीड करेगा एंड रीड करके आपका एक एक कैरेक्टर आपके मॉनिटर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज आपने यहाँ पे प्रिंटअप यूज किया है. ठीक है, सो प्रिंटअप के थ्रू आपका मॉनिटर स्क्रीन पे एक एक कैरेक्टर जो भी आपने रीड किया है वो प्रिंट हो जाएगा. एंड फाइनली यू हैव रिटन f क्लोज fptr. आपने वो जो फाइल ओपन की थी info.txt उसको आपने क्लोज कर दिया. ठीक है, सो इसका आउटपुट जो है नीचे आउटपुट दिया, दिस इज अ FEOF एंड ऑफ फाइल रेंज. ठीक है, इट मींस दैट सो दिस इज EOF. दैट मींस पहले आपका क्या प्रिंट होगा, दिस इज EOF, ये प्रिंट होगा. एंड आफ्टर दैट जैसे ही आपका फाइल पॉइंटर लास्ट पोजीशन पे चले जाता है, दैट मींस FEOF का आंसर आपको नॉन जीरो वैल्यू मिलता है, इट मींस दैट लास्ट में फिर आपका प्रिंट हो जाएगा एंड ऑफ फाइल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज EOF, इतना प्रिंट होगा, दिस इज EOF यहां तक के. आफ्टर दैट जैसे ही वो लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया, दैट मींस हमने फाइल में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखा था, दिस इज FEOF. देखिए दिस इज FEOF ये लिखा था हमने, व्हाट यू हैव रिटन दिस इज FEOF ये लिखा था. ठीक है, जैसे ही रीडिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, जैसे ही आपका पर्टिकुलर फाइल पॉइंटर लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया, दैट मींस ये F तक पहुंच गया, दैट मींस फाइल पॉइंटर आपका लास्ट पोजीशन पे रीच हो गया. सो लास्ट पोजीशन पे रीच हो गया तो ये आपका जो लूप है ये फॉल्स हो जाएगा आपका. ठीक है, FEOF का रिटर्न वैल्यू आपको नॉन जीरो मिल गया, दैट मींस आपका आंसर आएगा एंड ऑफ फाइल रीच. दैट मींस इसके बाद आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा एंड ऑफ फाइल रीच और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज अ वर्किंग of FEOF function. Now the next is FTEL. So basically what it means FTEL. F6 से क्या हुआ, in the first previous slides what we did in F6 में आपने क्या किया, F6 which is used to move your pointer either in forward or either in backward. FEOF function which is used to find whether your file pointer reaches to the last position. And now FTEL function is used to return the current positions of your file pointer. That means FTEL क्या करता है, FTEL ये क्या करेगा, आपके current positions of file pointer ये आपको सेंड करेगा. सपोज दिस इज अ फाइल, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है ये. ठीक है, एंड FTEL फंक्शन अगर आपने यूज किया तो FTEL फंक्शन विच इज यूज टू फाइंड आउट द करंट पोजिशन ऑफ योर फाइल पॉइंटर. आपके पॉइंटर का, ठीक है, आपका जो भी फाइल पॉइंटर होगा उसका करंट पोजीशन कहां पे, वो बिगिनिंग में है, वो मिडल में कहीं तो भी है, या लास्ट में कहीं तो भी है. दैट मींस इट विल गिव द करंट पोजीशंस ऑफ योर फाइल पॉइंटर. सो FTEL इज द फंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू रिटर्न अ करंट पोजीशन ऑफ योर फाइल पॉइंटर. नाउ see this program. We have created one file pointer fptr. Okay, after that we have opened the file info.txt in r+ mode. r+ mode means reading and writing mode. After that we have written fputs के थ्रू हमने क्या किया, ये this is the function return the current positions of your pointer. ये स्टेटमेंट मैंने एक फाइल में लिखा, कौन से फाइल में लिखा, fptr फाइल में किसका एड्रेस है, info.txt का एड्रेस है. दैट मींस यू हैव रिटन वन स्टेटमेंट, दिस फंक्शन रिटर्न्स द करंट पोजीशंस ऑफ अ पॉइंटर. कौन से फाइल में, info.txt फाइल में. यू आर रिटन दिस स्टेटमेंट इन info.txt फाइल. info.txt फाइल में हमने ये लिखा. आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, रिवाइंड fptr. रिवाइंड fptr का मतलब क्या होता है, आपका पॉइंटर कहीं पे भी हो, आपने फाइल में ये स्टेटमेंट लिख दिया, दिस इज द फंक्शंस रिटर्न द करंट पोजीशंस ऑफ पॉइंटर. ये वाला स्टेटमेंट आपने फाइल में लिख दिया.
सो ये वाला स्टेटमेंट फाइल में लिखने के बाद आपका फाइल पॉइंटर कहां पे रहेगा, ये आर पे रहेगा, यानी आपने यहां से लिखना स्टार्ट किया दिस फंक्शन रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ पॉइंटर, ये स्टेटमेंट आपने फाइल में लिख दिया, तो आपका फाइल पॉइंटर कहां पे रहेगा, आपका करंट हेड यहां पे रहेगा आर पे, क्योंकि यहां एंड हुआ है आपका, ठीक है। बाद में आपने फंक्शन यूज किया रिवाइंड एफपीटीआर, रिवाइंड एफपीटीआर, दैट मींस ये जो पॉइंटर है ये आपने इसको उठा के इसको रिवाइंड किया, रिवाइंड किया दैट मींस ये जो पॉइंटर है इसको उठा के आपने कहां पे सेट कर दिया, ये टी पे, यानी जहां पे आपने ये स्टेटमेंट लिखा है, दैट मींस फाइल पॉइंटर यहां पे था, फाइल पॉइंटर यहाँ पे था, यहाँ पे लास्ट रिटर्न वर्ड यहाँ पे था, इसको उठा के आपने फर्स्ट पोजीशन पे सेट किया, दैट इज यू हैव मूव योर pointer to the beginning up because you have used the rewind function, and what the rewind will do, rewind will change your current positions of the pointer, that means you will move the pointer to the beginning of your file, that means beginning, that is first character, at the first character of your file, whatever character or whatever statement you have written in the file, that means यहाँ पे आपने फाइल पॉइंटर जो था उसको उठा के आपने फर्स्ट पोजीशन पे सेट कर दिया। नाउ व्हाट यू डिड, प्रिंट ऑफ परसेंटेज ftl fptr, ठीक है। सो ftl fptr, ftl fptr, ftl क्या करता है, इट विल रिटर्न द करंट पोजीशंस ऑफ योर पॉइंटर, आपने रिवाइंड किया बट ऑब्वियस रिवाइंड किया तो आपका फाइल पॉइंटर फर्स्ट पोजीशन पे सेट हो गया, सो अभी इसका आंसर क्या आएगा, प्रिंटफ परसेंटेज ftl fptr, fptr दैट मींस अभी आपका fptr कहां पे होगा, आपका पॉइंटर आपका हेड कहां पे होगा, जीरोथ पे होगा, ठीक है, जीरोथ पे होगा आपका f पॉइंटर, ठीक है। सो इतने लाइन से आपका दैट मींस आपने बोला f, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू आपका आंसर आया जीरो, देखिए यहाँ पे जीरो आया, ठीक है। रिवाइंड किया, रिवाइंड करने के बाद बट ऑब्वियसली रिवाइंड के बाद आपका पॉइंटर कहां पे आता है, जीरो पे आता है, तो यहाँ पे आंसर आया जीरो। उसके बाद आपने क्या किया, fseek, आपने fseek फंक्शन यूज किया, fseek फंक्शन यूज करने के बाद आपने यहाँ पे लिखा fptr 5,1, यानी 1 लोकेशन से आपको फाइल पॉइंटर कहां पे लेके जाना है, 5th तक, ठीक है। यानी आपको अभी fseek फंक्शन यूज किया, fseek का मतलब क्या होता है, वी आर गोइंग टू चेंज द फाइल पॉइंटर, अभी चेंज करते समय कहां से कैसे चेंज किया, 1 से लेके आपको पॉइंटर कहां पे उठाना है, 5 तक, यानी सपोज यहाँ पे 1 पे है आपका पॉइंटर, मान के चलते कि ये 1 है, यहाँ पे आपने कुछ लिखा है, यहाँ पे आपका फाइल पॉइंटर है, यहाँ से उठा के आपको कहां पे चलना है, 5th पे, और 5th पे यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने उठा के यहाँ से मैंने फाइल पॉइंटर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। नाउ फाइल पॉइंटर मैंने शिफ्ट कर दिया, दैट मींस वो कहां पे चले गया, 5th नंबर पे चले गया, ठीक है। अभी फिर से मैंने क्या किया, प्रिंट अप परसेंटेज ftl f पॉइंटर, ठीक है। सो अभी सेकंड इसका आंसर क्या आएगा, फिर ftl f पॉइंटर, तो अभी आपका करंटली पॉइंटर कहां था, पहले आपका जीरो पे था, तो यहाँ पे जीरो आया, फिर आपने क्या किया, fseek के थ्रू क्या किया, आपने फाइल पॉइंटर को चेंज किया, यानी जो 1 पे था उसको आपने 5 पे शिफ्ट कर दिया, तो करंटली फाइल पॉइंटर कहां पे रहेगा, 5th नंबर के कैरेक्टर पे, ठीक है। सो आपने करंट पॉइंटर का पोजीशन लिया ftl के थ्रू, तो आपको यहाँ पे देखिए 5th लिख के आया हुआ है, इट गिव्स अ इंटीजर वैल्यू कि आपका करंट फाइल पॉइंटर कहां पे है। सो ftl इज अ फंक्शन व्हिच इज यूज्ड टू गिव अ करंट पोजीशंस ऑफ योर पॉइंटर, ठीक है, वो 0 पे है, 5 पे है, 10 पे या एंड पे है, सो इट विल रिटर्न अ वन इंटीजर वैल्यू, ठीक है। सो लाइकवाइज वी आर गोइंग टू यूज द ftl फंक्शन, and finally the rewind functions, already we have already seen the rewind function in the previous example. So basically the rewind function is used to return a file pointer to the beginning of a file, आप कोई फाइल है, वो फाइल में आपने कोई ऑपरेशंस किया, आपका पॉइंटर कहीं पे भी हो, मिडल में हो, एंडिंग पे हो, व्हाटएवर, ठीक है, आपका फाइल कहीं पे भी होगा, तो रिवाइंड फंक्शन क्या करता है, रिवाइंड फंक्शंस विल मूव योर पॉइंटर टू द बिगिनिंग ऑफ योर फाइल, आपका फाइल कहीं पे भी हो, फॉर एग्जांपल अगर फाइल आपका ये है, ठीक है, इस तरीके से आपका ये फाइल है, इसमें आपने कुछ लिखा हुआ है और आपका यहाँ पे पॉइंटर है, यहाँ पे पॉइंटर है, तो रिवाइंड अगर यूज करते हो तो ये यहाँ से उठ के कहाँ पे सेट हो जाएगा, जहाँ पे पहला कैरेक्टर दैट मींस फर्स्ट डेटा आपने रिटर्न किया हुआ है वहां पे ये शिफ्ट करता है, दैट मींस द रिवाइंड पॉइंटर, ठीक है। सो लाइकवाइज वी आर going to use a rewind pointer. So these functions we have already seen. fseek function to move the positions of the pointer forward or backward, ठीक है। If you want to use a backward, if you want to move the pointer to backward, so you have to use a negative value, ठीक है। आपने जैसे यहाँ पे लिखा है कि fptr 5,0 0 से लेके 5 पे सेट करना है, अगर आपने यहाँ पे -5 लिखा है तो ये क्या करेगा, 0 से लेके -5 पे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पॉइंटर यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे आप 10 पे हो, ठीक है, आपको अभी इधर जाना है,
इधर जाना है तो बट ऑब्वियस आपको निगेटिव, इधर बैकवर्ड बोले तो निगेटिव जाना पड़ेगा ना, ठीक है। सो यहाँ पे 10 है, ठीक है, सो आपको 10 से 5 पे आना है, ठीक है। आप करंटली 10 पे हो, आपको 5 पे जाना है, तो आप यहाँ क्या लिखो, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, -5 हुआ, ठीक है। दैट मीन्स बैकवर्ड जाना है तो यू हैव टू पुट योर निगेटिव वैल्यू डिस्प्लेसमेंट, कि कितना पीछे जाना है, ठीक है। और इधर अगर जाना है तो योर पॉजिटिव वैल्यू, अगर 10 से मुझे 15 पे जाना है, ठीक है, सो यहाँ मैं क्या करूंगा 15, यानी 10 से मुझे यहाँ पे आगे 15 कैरेक्टर छोड़ के जाना है, ठीक है, राइट। सो FEOF is used for to find out the end of the file. After that, F10, which is used to find out the current positions of your file, and rewind, which is used to change your cursor, change your head or pointer at the beginning positions. That is, wherever your pointer is there, so you have to move your pointer at the beginning position. So you have to use a rewind function. Okay. So hope you all are understood all of these functions, how we are going to use the functions and whatever program we have said. Okay. So thank you one and all. Thank you.